یہ کاٹ کھیلتا ہوں. بھائی صاحب تم کو کافی دیر سے بلا رہے ہیں. مجھے بلا رہے ہیں؟ بات سنو، کیا ہوا؟ تمہاری ممی کے ٹانگ میں کچھ خرابی ہو گئی؟ کمال کر دیا آپ نے. ایک تو وہ آپ سے پہلے خفا تھی، اوپر سے آپ نے ٹانگ کی بات چھیڑ دی. مجھ سے کیوں خفا ہے؟ میرا ان کی ٹانگ سے کیا تعلق؟ اور اس وقت گاڑی کتنی گیٹ سے ٹکرائی تھی؟ اوہ مائی گاڈ، وہ تو میں بھول ہی گیا تھا. اب میری مصیبت ہوگی، ممی آپ سے ملنے کو منع کر دیں گی اور پھر آپ خفا ہوں گے. میں مفت میں ماری جاتی ہوں. ارے نہیں، آپ صاف انکار کر دیجیے گا. آپ انہیں کہہ دیجیے گا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. نہ میں ممی سے کچھ نہیں کہوں گی اور میں اب جا رہی ہوں. ارے بات سنو بھی، میں نے پوری بات کہاں کی ہے؟ میری پہلے پوری بات تو سن لو. پوری بات پھر کبھی کر لیجیے گا، اس وقت میں جا رہی ہوں. ممی ناراض ہوں گی. مائی گاڈ، یہ ممی. ارے گلزار، کنور گلزار جی. آپ یہاں بیٹھے اکیلے کارڈ کھیل رہے ہیں. چلے میں بھی آپ کے ساتھ کھیلتی ہوں. جی نہیں، وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے نا، یہ کارڈ جو ہے اس میں میں ایک نیا گیم ایجاد کر رہا ہوں، تو آپ اپنا رسالے پڑھ لیجیے، میں یہ کارڈ کھیلتا ہوں. بھائی صاحب تم کو کافی دیر سے بلا رہے ہیں. مجھے بلا رہے ہیں؟ لیکن ممی بلانے کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ان سے بات کرنا کبھی پسند نہیں کرتا، ویسے وہ بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں. کنور گلزار جی، میں تم سے نہیں ان سے کہہ رہی ہوں. ان سے تو کہہ دیجیے پھر. مجھ سے کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا جی میں جاتی ہوں، شکریہ. اس قسم کی لڑکیوں سے تم کو بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. ممی میں نے تو بات نہیں کی، میں نے السلام علیکم بھی نہیں کہا انہیں. میں خوب جانتی ہوں ایسی لڑکیوں کو. اچھا، آپ کیسے جانتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس قسم کی لڑکیوں سے ملتی رہتی ہیں؟ کنور گلزار جی ممی میں سمجھ گیا، مجھے بالکل بات نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ ایسے ممی مجھے بھی ان کی باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں. کبھی کہتی ہیں مدد کرو، کبھی کہتی ہیں شادی کرو. اب بھلا آپ بتائیں، میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ کیا بک رہے ہو؟ ممی میں نہیں بک رہا، یہ تو وہی بک رہی تھی. وہ تم سے کہہ رہی تھی کہ شادی کرو؟ جی وہ خود ہی خود کہہ رہی تھی، لیکن میں نے ان کو صاف انکار کر دیا. میں نے کہا نہ، یہ قطعی ناقابل برداشت ہے. میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا. تو میری ٹانگ ابھی بالکل ٹوٹ جاتی ہے. باہر لان میں ورزش کی اتنی ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں اور اندھیرا اتنا ہے کہ کوئی بھی ان سے ٹکرا سکتا ہے. میری ٹانگ ٹوٹے بچی. یہ کیا اوٹ پٹانگ بک رہے ہو؟ یہ اوٹ پٹانگ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہیں گزرا. میں اس 1.5 من کی چیز سے ٹکرایا ہوں اور اس کے بعد لڑکتا چلا گیا ہوں. آپ کسی چیز سے ٹکرا گئے؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ میں پوچھتا ہوں جی کہ آخر ورزش کر کے یہ گوریلا کیا کنگ کانگ بنے گا؟ ارے آپ کسی گوریلے سے ٹکرا گئے کیا؟ تم چپ رہو. یہ گوریلا گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ ارے ممی یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. مائی گاڈ، ایسے جانوروں کو تو پنجرے میں بند کر کے رکھنا چاہیے. بالکل. تم کو میرے سامنے اپنی زبان سنبھال کر بولنا چاہیے. ممی دروازہ تو بند کر دیجیے، کہیں گوریلا اندر ہی نہ آ جائے نا. اور تم کو اتنی بڑی چیز نظر نہیں آئی، جا کر ٹکرا گئے. ارے ہاں خالد میاں، گوریلا تو کافی بڑا ہوتا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بخود ٹکرا گئے. تم اپنی چونچ بند رکھو احمق کہیں گے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم جا کر اپنی ٹانگ پر دوا لگاؤ. وہ تو میں لگا ہی لوں گا، مگر آپ اپنے اس گوریلے کو سمجھا دیجئے کہ اگر آئندہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے برا آدمی کوئی نہیں ہوگا. میرا غصہ بہت برا. ارے خالد میاں، ممی گوریلے کو کیسے سمجھائیں گی؟ ان کی بات کیسے مانے گا وہ؟ وہ گوریلا، یہ ممی میں ایک بات بتاؤں آپ کو ممی، میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ اپنے گھر واپس چلیں. ہم 6 مہینے سے یہاں بلا وجہ میں رہ رہے ہیں اور اب تو یہاں گوریلے بھی آنے لگ گئے ہیں. میں بتاؤں ممی آپ کو ایک بات، مجھے ہے نا شعیب انکل، وہ مجھے پیسے ویسے نہیں دیں گے، مجھے بالکل پسند نہیں کرتے ہیں وہ. تم چپ رہو. میں چپ تو ہوں، وہ گوریلا نہ آ جائے. چلو یہاں سے چلو خبر نہیں. اس گھر کے اخراجات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے مجھے خود کنٹرول کرنا پڑے گا. اور گھروں میں لوگ سختی سے ایک ایک پیسے کا حساب کتاب لیتے ہیں. تانیہ مجھے بتا رہی؟ جی ضرور بتا رہی ہوں، لیکن اس وقت میں شعیب انکل عامر کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. عامر؟ جی. عامر کو کیا ہوا؟ کیا آ رہا ہے وہ نامہ بولا کا؟ جی نہیں، وہ دراصل ان کو پچھلے مہینے کا الاؤنس نہیں ملا ہے، اب تک بہت پریشان ہے، آ رہا ہے. اب اس کے سارے الاؤنس بند، لکھ دو اسے. بہت عیش کر لیے اس نے، اب میں ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کروں گا.
میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی پڑھ لکھ کر نہیں دے گا. جی وہ مختار صاحب آئے لاہور سے. آئے ہوں گے کوئی بہانہ لے کر. یہ جو سارے کرایہ دار تم نے رکھ چھوڑے ہیں سب کے سب نکمے ہیں. میں بالکل عاجز آ گیا ہوں. بالکل نہیں شعیب انکل یہ سمجھاؤ. یہ مختار صاحب تانیہ کے نانا جان ہیں. تانیہ کے نانا جان؟ اچھا تو وہ نانا جان آ گئے. گویا وہ لڑکی کو لینے آئے ہوں گے. ذرا بلاؤ تو صحیح انہیں. جی. اور یہ بتاؤ یہ ٹائی اس سوٹ کے ساتھ تھی؟ جی بہت اچھی لگ رہی ہے. اور یہ تمیز تم نے کہاں سے لی؟ جی ہاں یہ لندن سے لایا. اچھا بہت فضول خرچ ہو گئے ہو تم. میں کیا ضرورت تھی اتنی مہنگی قمیض پہننے کی؟ محض شو آف کرنا. جاؤ بلاؤ انہیں. ویسے تانیہ کے نانا جان سے ملنے کا مجھے اچھا خاصا اشتیاق تھا. اس لڑکی نے بڑا دلچسپ نقشہ کھینچا ہے ان کا. ذرا ملوں تو صحیح. آئیے مختار صاحب. یہ شعیب انکل مختار صاحب. یہ ہے وہ شخص جس نے میری نوازی کو اغوا کر رکھا ہے. اور یہ وہی ظالم شخص ہے جس کی وجہ سے ایک معصوم بچی در بدر پھر رہی ہے. مختار صاحب آپ تشریف کی. میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں. تانیہ کو بلاؤ فوراً. میں ابھی اسی وقت اس کو لے کے جاؤں گا. اگر وہ چلی گئی تب یہ دیکھتا ہوں اسے روک کون سکتا ہے. میں تانیہ کو بلاتا ہوں. تشریف رکھیے. قطع نظر ہمارے اختلافات کے میں بے حد با اخلاق اور وزادار انسان ہوں. میں سارے اخلاق اور وزاداری کی اصلیت کو خوب پہچانتا ہوں. سمجھ گیا؟ اس سے وہ بے وقوف تانیہ ہی دھوکہ کھا سکتی ہے. میں نہیں کھا سکتا. معاف کیجیے گا لیکن میں منافقت پسند نہیں کرتا. اس لیے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی. وجہ ارشاد ہوا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. الحد مجھے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میری نواسی کو میری اجازت کے بغیر اپنے گھر میں رکھنے کی غیر اخلاقی، غیر اصولی، غیر قانونی حرکت یا جرأت کیسے کی؟ میرے گھر میں صرف میرے اخلاق، میرے اصول اور میرے قانون چلتے ہیں. سمجھے آپ؟ جی بالکل سمجھ گیا ہوں. آپ کیا سمجھائیں گے مجھے؟ پوچھ رہے ہیں سمجھے. مگر مجھے اندازہ یہ نہیں تھا کہ آج کے زمانے میں پتھر کے دور کے بھی انسان آپ جیسے کہیں پائے جاتے ہیں. جنگل کے قوانین نافذ کر رکھے گھر میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. گولڈ میڈل بھی لیے ہیں. کیا لیے؟ گولڈ میڈل لیے ہیں. جی تو آپ کے خیال میں مجھے اس بات پہ تعجب ہونا چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ ابھی تک تو میں اس بچی کے حیرت انگیز رویے کو سمجھنے سے کچھ قاصر تھا، لیکن آج آپ کو دیکھ کر مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا رویہ کچھ زیادہ غلط نہیں. دیکھیے عرض کر رہا ہوں میں کہ میری نواسی جو ہے میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں کسی ایرے غیرے کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتا. لیکن آپ کا وہ ذاتی معاملہ خود اپنی مرضی سے میرے پاس آیا. بہرحال لیکن نواسی کوئی لاوارث لڑکی نہیں ہے جو ایسے فضول سے مکانوں میں پناہ لیتی پھرے. فضول؟ یہ مکان اس علاقے کا بہترین مکان ہے. یہ بہترین مکان ہے؟ واہ بہت خوب. کوئی مفت تب بھی معلوم ہے. دیکھیے آپ میرے گھر میں ہوتے ہوئے میرے گھر کی برائی نہیں کر سکتے. دیکھیے میں آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے آپ کی برائی نہیں کر سکتا. سمجھ گئے آپ؟ وہ بچی بالکل حق بجانے. بھائی وہ بچی ہے کہاں؟ آخر آتی کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ آپ نے نانا جان کو بلایا ہے محض مجھے واپس بھیجنے کے لیے. میں نے جو کچھ کیا ہے آپ کی بہتری کے لیے کیا ہے. آپ کیا میری بہتری کے لیے کریں گے؟ آپ حد درجے دھوکے باز اور بحث انسان ہیں. کو غلط فہمی ہوئی ہے تانیہ. میں آپ آخر مجھے واپس بھیجنا کیوں چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر آپ کو اس سے اتنی ہی محبت ہے
तो फिर आप उसकी शादी उन फजूल किस्म के लड़कों से क्यों कर रहे हैं जिनकी गज गज भर लंबी मूछें हैं? देखिए, एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप बहुत देर में समझते हैं। मैं अपने मामलात में किसी को दखल देने की इजाजत नहीं दिया करता हूँ, समझ गया? वो मेरी नवासी है या आपकी है? तानिया आओ। आओ बेटी आओ। मेरा ख्याल है ये वही नाना जान है जिनका तुम बहुत जिक्र करती हो। अभी चलो, इसी वक्त मेरे साथ चलो, ताकि ये फौरन उन हवन्नक किस्म के लड़कों से तुम्हारी शादी करके छुट्टी करें। बराए मेहरबानी आप दखल ना दें। मेरी छत के नीचे जो बात होगी उसमें मैं जरूर दखल दूंगा। तानिया जी बेचारी मजलूम बच्ची। शुएब साहब, मैं इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मेरी कुव्वत बर्दाश्त भी बहुत कम। देखिए, एक मिनट। मेरा ख्याल ये कि हम लोग बैठकर इंतहाई सूरत के साथ भी ये बातें तय कर सकते भाई कैसे? कैसे? हैं। अगर आप लोग तानिया से क्यों नहीं पूछते कि ये क्या चाहती है? इनकी मर्जी के बगैर तो कोई फैसला भी बिल्कुल बेकार होगा। नाना जान, मैं अभी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। भाई ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन है। मैं फौरी तौर से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नाना जान प्लीज, आप मेरी बात मान लीजिए, फिर मैं अभी आपके साथ घर चलती हूँ। मैं तो हर हाल में घर वापस चलना पड़ेगा। नहीं, मैं मुझसे टक्कर लोगी तुम? क्या अर्थ है? मैं नहीं कह रही थी नाना जान, आप मुझे सिर्फ थोड़ी सी मोहलत दे दें। भाई मैं तुम्हें बहुत मोहलत दे चुका हूँ, साल भर मोहलत देता रहा हूँ, अब वक्त नहीं है मेरे पास। और ये याद रखो, मैं तुम्हें अदालत के जरिए भी बुलवा सकता हूँ। मुश्किल है। मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर लेकर जाऊंगा, समझी? और जैसे ही तुम घर में कदम रखोगी ना, तुम्हारी शादी कर दी जाए। नाना जान प्लीज मेरी बात तो सुने ना। ये शादी नामुमकिन। ये तो वक्त बताएगा। नाना जान प्लीज आप रुके तो बिना होना चाहिए। आप तो बहुत बहादुर लड़की हैं। काश मुझ में इतना हौसला होता ना, तो मैं सीधा शैला की मम्मी के पास जाता, उनकी लड़की का हाथ पकड़ता, उन्हें खुदा हाफिज कहता और चलाता। आपको शैला वाकई बहुत पसंद है? दिलो जान से ज्यादा। पिछले 3 साल में 50 लड़कियां आई, लेकिन शैला अपनी जगह मोहब्बत की देवी की तरफ कायम है। भी हजारों आंखें आई, लेकिन कोई उसे ना हिला सके। आप शहजाद साहब से क्यों नहीं कहते कि वो बात करें? शहजाद बेहिस इंसान है, उसकी समझ में नाजुक ख्यालियां नहीं आ सकती। और फिर उसके अपने हजारों चक्कर हैं, क्लाइंट्स हैं, मुकदमे हैं, फाइलें हैं, अजरा बेगम है। ये अजरा बेगम कौन है? अरे शहजाद के नमूने की खातून है। गेटअप, लिखाई, छपाई, मजमून सब का सब वही है, बस गलती से वो सिर्फ खातून है। दोनों एक साथ लिखे पढ़े और एक ही साथ काम कर रहे हैं। अगर शहजाद ने अक्लमंदी ना की तो शायद सारी उम्र एक साथ ही रहे उल्लुओं के जोड़े की तरह। प्लीज तानिया, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज। ठीक है, मैं उनसे आपकी तारीफें कर दूंगी। बस आप उन्हें ये बताइएगा कि मैं उन्हें दिलो जान से ज्यादा चाहता हूँ और कि मैं बहुत ही लाजवाब इंसान हूँ। और बस हाँ, इसकी आप फिक्र न करें, मैं आपकी ऐसी ऐसी खूबियां उनको बताऊंगी कि खुद आपको मुश्किल से यकीन आएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये देखिए। शुक्रिया, बहुत तकल्लुफ करती हैं आप। और एक बात बताइए, तो आप हमारे घर के इतने करीब रहती हैं और फिर भी इतना कम आती हैं? मैं बहुत कम आती जाती हूँ। दरअसल मम्मी इधर उधर जाने को पसंद ही नहीं करती हैं। वो कहती हैं लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा करती हैं। वैसे खालिद आपकी मम्मी की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत अजीम खातून है। अच्छा, और आपके बारे में भी बता रहे थे। अब आप बना रही हैं, कमाल कर रही हैं आप। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, आप वाकई बेहद मशहूर कौन हैं। प्लीज ऐसी बातें न कीजिए, आप बहुत मासूम हैं। शहजाद साहब, ये शहला है, आप शहजाद साहब। आदाब। यही पड़ोस में रहती, मुझसे मिलने आए हैं। यहाँ आपकी गायबाना तौर पर तो बहुत तारीफ सुनी, लेकिन मिलने का इत्तेफाक पहली मरतबा। और बैठो शहजाद, चाय मैं पीऊँ। आप मुझे उससे एक बात करनी थी। वो मैं ये कह रहा था खालिद के शोएब अंकल है ना, अभी थोड़ी देर में यहाँ से गुजरने वाले। वो क्यों गुजरेंगे? वो कहाँ जा रहे हैं? उन्हें मीटिंग पर जाना है।
यहाँ से गुजरेंगे और ये सब कुछ देखेंगे तो जो कुछ उन पे गुजरेगी वो मैं अल्फाज में तो नहीं बयान कर शहजाद, ये तो बहुत बुरा होगा, तुम उन्हें रोक लो प्लीज। हाँ हाँ कैसे रोक लो? पर ये बात बताओ, ये सारा इत्माम सिर्फ एक लड़की के लिए? शहजाद, सिर्फ 15 मिनट की बात है, 15 मिनट के लिए मैं रोक लो, उसके बाद हम कहीं और चले जाएंगे, बागीचे में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। मैं कैसे रोक लूँ उनको? मेरे रोकने से रुक जाएंगे? शहजाद, मेरा पूरा मुस्तकबिल इस वक्त तुम्हारे हाथ में, प्लीज मुझे तबाही से बचा लो प्लीज। भाई आप लोग क्या अलग थलग बातें कर रहे हैं? शहला यहाँ बैठने कितनी बुरी बात है। वो दरअसल शहजाद के ऑफिस की कुछ बातें थी, डोंट माइंड प्लीज। हाँ तो वो शहजाद तुम्हें जरूरी काम पे जाना है? हाँ जल्दी, हाँ हाँ वो जाके जल्दी काम करो। हाँ वो जल्दी जाओ, देर हो रही है, जल्दी जाओ। हाँ तो वो मेरा ख्याल है कि आप लोग कुछ खाना है ना, खा के मेरे अगर नहीं खा रहे तो मेरा ये ट्रॉली हटवा देते हैं, ये खाओ के बीच में पड़ी हुई है। अस्सलाम अस्सलाम। मगर तुमने तो कहा था कि मीटिंग 6 बजे होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने 6:30 बजे मीटिंग। 6:30 बजे? अब बिल्कुल गलत। तो 6:30 बजे कैसे हो सकती है? मुझे अच्छी तरह याद है कि खाने का वक्त उन लोगों ने 7 बजे का दिया था। 7 बजे खाना? कमाल करते हैं वो लोग भी। 7 बजे कौन खाना खाता है शोभा? तुम आज किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, कुछ मेरा ख्याल हो सकता है मेरी सुनने में कोई गलती हुई। 6 बजे होगी मीटिंग से, लेकिन अभी तो बहुत देर है। और कोई देर नहीं है, चलो फौरन। नहीं शोभा अंकल, अभी मुझे कपड़े बदलने। कपड़े बदलने? तो इन कपड़ों में क्या खराबी है? अच्छे खासे हैं। ये मैले हो गए ना शोभा अंकल? ये कपड़े तुम्हें मैले लग रहे हैं? जी। शहजाद, तुम्हारी तबीयत जरूर खराब। कोई बुखार तो नहीं? नहीं मुझे कुछ नहीं है, मैं एक 10 मिनट में तैयार होकर अभी आया हूँ हाथ होकर। तुम्हारे ख्याल में वहां कौन लोग आ रहे हैं? या क्या वाकई कुछ इस किस्म के लोग आ रहे हैं जिनके सामने तुम मुंह धोकर और बेहतरीन कपड़े पहनकर जाना चाहते हो? नहीं कोई नहीं आया शोभा। तुमसे मिलने यहाँ कोई आ रहा है? यहाँ कोई नहीं आ रहा। किसे वक्त दे रखा है तुमने? किसी को नहीं शोभा। शोभा मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो? ये क्या हुआ? पड़ोस में हुआ होगा कुछ। पड़ोस से इतनी तेज आवाज कहाँ आ सकती है? जरूर उन नौकरों ने कोई बर्तन तोड़े हैं। दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। मैं देखता हूँ। नहीं शोभा अंकल, मैं देख लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। नहीं खबरें होंगी और 6:42 पर हिंदी में दस्तावेजी प्रोग्राम नकुश पेश किया जाएगा। कपाल शारी और सादगी, ये प्रोग्राम कल आप 7 बजे देखेंगे। रंगीन अंग्रेजी प्रोग्राम को जब कल 7:36। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि मैं मुकदमा लड़ूंगा और मुकदमे में मुझसे कोई नहीं जीत सकता, ये बात तय है। वैसे काफी अरसे से मैंने कोई मजेदार मुकदमा नहीं लड़ा। कोई फायदा नहीं, नाना जान जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नामुमकिन, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? आखिर उस शख्स ने, तुम्हारे नाना जान ने मुझे चैलेंज किया है और कोई मुझे चैलेंज कर दे तो मैं पीछे नहीं हटता, आखिरी दांव तक लड़ता हूँ। आखिर क्या समझ रखा है तुम्हारे नाना जान ने मुझे? शायद गलती मेरी ही थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अगर तुम्हें उन हवन्नक लड़कों से शादी नहीं करना थी तो उन्हें बात मान जाना चाहिए थी। वैसे ये बताओ कि तुम सिर्फ उन लड़कों के खिलाफ हो या किसी से भी नहीं करोगे? किसी से तो खैर कर लूंगी। ओह गुड। अच्छा एक बात और बताओ, माफ करना मैं कुछ साफ बात करता हूँ, तुम्हें और कोई तो पसंद नहीं है या इस किस्म की कोई और खुराफात? जी नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद। गुड, बस तो फिर ठीक है, एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। गुड,
ہاں لڑکی ٹھیک ہے، تمہیں یہاں سے اب کوئی نہیں لے جا سکتا، سمجھی تم؟ مگر کوئی اگر مگر نہیں، میں جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، تم وہی کرو گی جو کہ میں کہوں گا، سمجھی تم؟ ٹھیک ہے، پرامس؟ مگر تم بالکل فکر نہ کرو، اب جاؤ تم یہاں سے، جاؤ جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اس ہفتے کے اندر اندر نہیں آ سکتے ہو تو میں فون پر نکاح کروا دوں گا، سمجھے؟ فون پر۔ بہت اچھی لڑکی ہے، بے وقوف، ثانیہ ہے نام اس کا، ثانیہ احسان ہے۔ ماں ہوش میں ہو تم؟ 10 سال سے گل چھڑے اڑا رہے ہو، ابھی تک کچھ نہیں کیا، تو اب کیا کر دو گے؟ تمہارے لیے یہ شادی بہت ضروری ہے، بس میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ اور کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر اس جمعے کو تمہیں یہ شادی نامنظور ہے تو کان کھول کر سن لو، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آنکھ کر رہا ہوں، آنکھ، ایک کوڑی بھی نہیں ملے گی تمہیں، ساری الاؤنسیں بند۔ اب تم خود فیصلہ کر لو۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس تو فٹ ہے، میں سارے انتظامات کروا لوں گا، اور میں کل پھر تمہیں فون کروں گا، سمجھے؟ اور سنو، ہوش و حواس میں رہ کر فیصلہ کرنا۔ خدا حافظ۔ تانیہ غضب ہو گیا۔ کیا کمال ہے بھائی، آپ کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ وہ خالد، یہ بات آپ مجھے صبح نہیں بتا سکتے؟ حد ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو بھی برا ہے۔ اچھا بتائیے، میں دراصل اتنی گہری نیند سو رہی تھی، ایک لفظ نہیں سمجھ پائی ہوں۔ شعیب انکل آپ کی شادی اپنے پوتے عامر سے کر رہے ہیں، سب طے کر لیا انہوں نے ٹیلی فون پر، اور وہ لڑکا ہرگز اس قابل نہیں کہ کوئی معقول یا غیر معقول لڑکی اس سے شادی کرے۔ 10 سال سے امریکہ میں پڑھ لکھ کر نہیں دیا، عیش کر رہا ہے وہاں پہ، بلکہ ہو سکتا ہے اس نے وہاں پہ دوسری شادی بھی کر رکھی ہو پہلے ہی سے۔ شعیب انکل نے اسے آپ کرنے کی یا الاؤنس بند کرنے کی دھمکی دی، تب جا کے وہ مانا ہے۔ خالد کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو ایک لفظ نہیں سمجھ پائی۔ تمہیں سمجھانے کے واسطے میں کون سے الفاظ لے کے آؤں، بس تم صاف انکار کر دینا، ورنہ ساری عمر سر پکڑ کر رو گی اور نکاح ٹیلی فون پہ ہی لڑکا رہ جائے گا۔ وہ سب جلدی جاؤ، باقی باتیں صبح ہوں گی، بس تم صاف انکار کر دینا، چاہے وہ جو کچھ بھی کہے، تو جاؤ جلدی۔ جی خالد صاحب سو کے اٹھ گئے؟ جی میں انہیں اٹھانے گیا تھا تو انہوں نے تکیہ کھینچ مارا۔ اچھا خیر، تم جاؤ میرے لیے ایک پیالی چائے بنا کے لاؤ۔ جی بیٹا۔ ہلو، مجھے عذرا کہتے ہیں۔ آداب، میں تانیہ۔ بیٹھے۔ ہاں میں سمجھ گئی تھی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ دراصل آپ کے بارے میں اتنا سنا تھا کہ ملنے کا اشتیاق ہو گیا تھا۔ میرے بارے میں؟ کس نے بتایا آپ کو میرے بارے میں؟ اس گھر کے لوگوں کی ساری باتیں مجھے معلوم رہتی ہیں۔ دراصل میں اور شہزاد بہت اچھے دوست ہیں، برسوں سے ساتھ ہیں، ذرا سی بات ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ آپ آئی ہوئی ہیں۔ کیسی لگی یہ جگہ آپ کو؟ جگہ تو لگ بھگ ساری ایک ہی جیسی ہوتی ہے، آپ کو مختلف لگتی ہے یہ جگہ؟ ہلو شہزاد، کیا میں جلدی آ گئی؟ نہیں مجھے ذرا دیر ہو گئی۔ تانیہ یہ جی شکریہ، میں ان سے مل چکی ہوں۔ میں تو صرف ان سے ملنے اندر آ گئی تھی، ورنہ باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کرتی۔ چلیں؟ اوکے تانیہ، پھر ملیں گے۔ گڈ لک۔ خدا سنیے۔ جی فرمائیے۔ آپ کو قطعی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ لوگوں سے میرے بارے میں باتیں کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے آپ کے بارے میں کس سے بات کی؟ آپ نے ان کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ دیکھیے میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ میں اس قسم کی بے وقوفانہ باتوں میں ضائع کرتا پھروں، خاص طور پر گوسپنگ۔ پھر ان کو کیسے پتا چلا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں؟ تو اگر ان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کو یا کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں، سمجھے آپ؟ ٹھیک،
यही कहना चाहते क्या? जी नहीं, मुझे आपसे एक और बहुत जरूरी बात करनी है। फरमाइए। खालिद मुझे बता रहे थे कि शोएब अंकल मेरी शादी अपने पोते से कर रहे हैं जो अमेरिका में है। खालिद को किसने बताया? रात को 3 बजे उसने मुझे आके बताई है ये बात। रात को 3 बजे? रात को 3 बजे? उसे कैसे पता चला? उसने अपने कानों से ये बात सुनी है जो शोएब अंकल फोन पे कर रहे थे अपने पोते से। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? शादी वादी मुझे बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो अमेरिका में हो या कहीं भी हो। ठीक है, आपकी यही सजा होनी चाहिए कि आप तो जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझती हैं ना अपने आप को। अब भुगतिए नतीजे। आप हद दर्जे। जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते? एक बात बताइए, आपने मेरी कौन सी बात सुनी? पेट भर कर हिमाकतें करती फिर रही हैं आप। अब भुगतिए उनके नतीजे को। जाए आके। खुदा का शुक्र है तुम मुझे मिलती। मैं तो तमाम रात नहीं सो सका हूं। क्या सोचा तुमने? क्या सोचूं मैं खालिद? मैं शायद रात तुम्हें सही तौर पे समझा नहीं सका हूं। बात यह है कि मैंने खुद अपने कानों से साफ साफ सुना है शोएब अंकल तुम्हारी शादी आमिर से कर रहे हैं। खालिद, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ। अगर मैं नाना जान से टक्कर ले सकती हूँ तो शोएब अंकल को भी मना कर सकती हूँ। शादी न हुई मुसीबत हो। गुड, वेरी गुड। आप साफ इनकार कर दीजिए। ऐसे ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ कि वो शख्स यहाँ कभी नहीं आएगा, ना ही आपको वहां बुलाएगा। और कुछ वही नहीं कि अगर उसे चंद पैसे मिल गए ना तो आपकी छुट्टी भी कर दे। ऐसा हो सकता है? जी, ऐसा ही होगा। वो तो शोएब अंकल ने उसे आग करने की धमकी दी, पैसे बंद करने की धमकी दी, सब वो माना है। वरना उसे क्या जरूरत पड़ी इस किस्म की बेतुकी शादी करने की, महज नाम की शादी। ये तो एक तरह से गायबाना नमाज जनाजा हुई आपकी। बेगर इंसान को नाम से ही शादी करनी ना तो और बहुत से खूबसूरत नाम है। बिलफर्ज सिकंदर आजम से कर ले, लॉर्ड बायरन से कर ले। तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ नाम की शादी होगी, वो आएंगे नहीं? बिल्कुल, मगर तुम हौसला रखना। और थोड़ी दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। आप पानी पिए, ठहरिए मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। तानिया, आपको याद है ना कि मैंने आपको क्या बताया? बीवी जल्दी आइए। माय गॉड तानिया, चट्टान की तरह हट जाइए, साफ इनकार कर दीजिए। मेरा ख्याल है कि शोएब अंकल मेरे लिए जो कुछ करेंगे वो बेहतर ही करेंगे। हैं? वो ओके सर। ओके शहनाज, खुदा हाफिज। शहजाद, मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा पागलपन का वाकया कोई नहीं देखा। तानिया ना कतई दीवानी। अच्छा, तुम इतना सुकून से कह रहे हो? अच्छा, जैसे कोई बात ही नहीं। वो आमिर से शादी करने पर तैयार है। तुम्हें किसने बताया? कौन बताता? उसने खुद बताया मुझे। पहले ही पता था कि वो लड़की अब नॉर्मल है। इस वक्त कहाँ है? इस वक्त वो शोएब अंकल के कमरे में है। वो ही बैठे कोई पट्टियां पढ़ा रहे होंगे उससे। सीधी सादी बात तो सिर्फ ये है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं उन सारे बेवकूफ और लालची लोगों को भुगतते भुगतते थक चुका हूं।
ویسے وہ لڑکا بھی لاکھوں میں ایک ہے، بالکل میرے اوپر بڑا ہے، مزاج کا بھی بہت اچھا ہے، بس ذرا فضول خرچ ہے لیکن شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ویسے عامر ان تمام لڑکوں سے بہتر ہوگا جن سے تمہارے نانا جان سال بھر سے تمہاری شادی کرنے کی فکر میں ہے۔ شاید نہیں، یقینی۔ بہرحال پھر بھی تم سوچ سمجھ کے کل تک مجھے جواب دو۔ میں نے کل تک کا وقت اس نامعقول کو بھی دے رکھا ہے، وہ مجھے فون کر کے بتائے گا۔ اچھا ویسے یہ شہزاد کو تو ذرا جا کے دیکھا تو مجھے اس سے بہت ضروری کام۔ جی اچھا۔ بیٹھو خالد، اشرف کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ تانیہ نے اگر یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے تو بہرحال اس کی مرضی۔ فیصلہ تو اس نے بے شک کیا ہے، لیکن سوچنا سمجھنا اس کا کام نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے آج تک جتنے کام کیے ہیں اس میں کہیں سوچ سمجھ کا دخل ہے؟ ویسے میں اس کی ضرورت پہ تو ہمیشہ سے اشش کرتا ہوں، لیکن یہ جو اس نے فیصلہ کیا نا، بالکل گڑبڑ کیا ہے۔ کیا تم مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں؟ ہاں کیا کہوں میں اسے؟ اس سے پہلے میں نے جو کچھ اس سے کہا ہے وہ اس نے سنا، لیکن یہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ عامر سے آخر وہ کس مصلحت کی بنا پر شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے یار، کوئی نہ کوئی بات کیا، بس اسے اس بات کا یقین ہے کہ عامر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دراصل میں جب عامر کی برائیاں گنوا رہا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ عامر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، اور دوسرے یہ کہ وہ صرف پیسے کے لیے محض نام کی شادی کر رہا ہے۔ اور بس یہ سنتے ہی وہ فٹافٹ راضی ہو گئی۔ شک تھا کہ اسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہوگی۔ یار یہ بھی تو کوئی پکی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے عامر واپس لوٹ آئے تو۔ تم نے اسے یہ کیوں نہیں بتا دیا؟ یہ سب کچھ مجھے کرنا ہے، تم کس مرض کی دباؤ؟ وہ لڑکی میری وجہ سے یہاں آئی تھی یا تمہاری وجہ سے؟ لیکن وہ عامر سے شادی میری وجہ سے تو نہیں کر رہی نا خالد؟ یار وہ تو محض ضد کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ اوپر سے شعیب انکل ہے جنہیں عجیب عجیب چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے، تانیہ انہیں پسند آ گئی، اسے بھی جمع کرنا چاہتے ہیں۔ یار دیکھو، تم اس بیچاری ایک لڑکی کو نہیں بچا سکتے، ہزاروں جھوٹے سچے لوگوں کو بچانے کے لیے جان کی بازی تک لگا دے۔ دیکھو خالد، جن لوگوں کو بچاتا ہوں نا وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان لوگوں کو خود بچنے کی تمنا ہوتی ہے۔ شہزاد یہ لڑکی خودکشی کر رہی ہے، ایمان سے مجھے اس کی موت کا افسوس ہوگا۔ بڑا اچھا نمونہ تھا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، بہرحال دیکھیں کیا ہوتا۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ تم گانے گاتا تھا؟ گانا؟ یس۔ کیسا گانا؟ اچھا وہ آپ اسے کہہ رہی تھی میں گنگناتا ہوا یہاں سے جا رہا تھا؟ وہ دراصل میں موسم کی وجہ سے گنگنا رہا تھا، اگر آپ کو برا لگ گیا تو سوری کر دیجیے۔ نو نو، ہم کو برا نہیں لگا، ہم کو تو گانا بہت اچھا لگتا ہے، تم گانا گایا کرو۔ اوہ، یہ تمہارا فیس ریڈ کیوں ہوتا؟ تم کو بخار تو نہیں ہونا مانگتا؟ کھایا بخار تو مجھے؟ ہاں میں سمجھا، یہ میرے دل کی زور زور سے کیوں دھڑک رہا تھا، سمجھ آ گئی بات، یہ بخار ہو گیا مجھے، یہ پلس نہیں مل رہی میری جی، کچھ سمجھ آئی بات ہے؟ ڈونٹ وری، تم کو بخار نہیں ہونا مانگتا۔ سنیے، میں دراصل بات پتا ہے کیا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے کبھی بھی بخار ہو گیا نا تو میں آپ سے علاج کراؤں گا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے نا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ بھی بہت اچھا آدمی ہے، ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، ہمارا کیئر کرتا ہے تم۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ کمال کر رہی ہیں آپ، مجھ سے آج تک کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ کوئی بھی نہیں بولا، بولنا مانگتا سب کو، تم تو بہت اچھا آدمی ہے نا۔ ابھی ایکسکیوز می، ہاں ہم شعیب صاحب کو جوس دینا مانگ نا، وہ یہ جوس میں شعیب انکل کو دیا ہوں۔ دراصل میری ممی جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ شعیب انکل کو روز السلام علیکم کرنے جایا کرو۔ میں کیا کرتا ہوں کہ روز شعیب انکل کو یہ پھول بھی دینے کے لیے جاتا ہوں، لیکن شعیب انکل پتہ کیا کرتے ہیں، مجھے روز تھک کے دے کے کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ڈونٹ وری، بٹ دس ٹائم نا تم اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں جا سکتا کہ اندر بہت امپورٹنٹ بات ہوتا۔ ارے امپورٹنٹ بات ہوتا تو ہونے دیجیے، میں تو جاؤں گا السلام علیکم کروں گا، باہر آ جاؤں گا۔ نو، اندر شادی کا ڈسکس ہوتا، شعیب صاحب کرتا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ کہ شادی کی ڈسکس ہوتا؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اس عمر میں شعیب انکل شادی کر رہے ہیں، بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ نو، یو آر رانگ۔ شعیب صاحب اپنا شادی نہیں بناتا، اپنی پوتی کا شادی بناتا کون سے؟ آہستہ 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 بتائیے، جیسے املا لکھاتے ہیں نا۔
नॉट इमली, आई मीन इमला डिक्टेशन। डिक्टेशन। तो मैं समझा नहीं, किसकी शादी टेलीफोन से हो रही है? देखो मैन, अभी ये बात किसी को मालूम नहीं है, तुम नहीं बोलेगा? हाँ देखो, श्वेत साहब अपना पोते का शादी बनाना मांगता टेलीफोन से। पोता किसको कहते हैं? नो पोता? नो। ओह, ग्रैंडसन को बोलता बाबा, बेटा का बेटा, अमेरिका में है वो। अच्छा, तो कौन कर रहा है उनसे शादी? ये मिस तानिया करता है। क्या ये तानिया ये जो यहाँ रह रही है? वेरी नाइस गर्ल। खैर, मुझे ये तो नहीं पता कि नाइस गर्ल। रियली बाबू। खोल गुलजार। जी मम्मी। ये क्या हो रहा था? मम्मी कहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा मम्मी। तो अच्छा, जरा तो बात ये मम्मी कि मैं गुनगुनाता हुआ यहाँ से जा रहा था कि मुझे ये मिल गई बस। आखिर तुमको औरतों से बात करने की जरूरत क्या है? मैंने औरतों से कहाँ बात की? मैं औरतों से कहाँ बात करता हूँ? पता नहीं आपको किसने बता दिया? जिसने बताया ना बिल्कुल झूठ बताया। मैं कहती हूँ, इस नर्स से तुम्हें बात करने की क्या जरूरत है? उनसे आप नर्स की बात कर रही हो मम्मी? हाँ। वो तो दरअसल मुझसे खुद ही बात कर रही थी, कहने लगी कि तुम बहुत अच्छे हो। कौन गुलजार? जी मम्मी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो शोएब अंकल को अस्सलाम वालेकुम करने जा रहा था, वो शादी की बात करने लग गई। वो औरत तुमसे शादी की बात कर रही थी? औरत नहीं मम्मी, नर्स। वो कह रही थी किसी को बताना नहीं। आखिर वो तुमसे खून की फजूल बात क्यों कर रही थी? किस किस्म की बात? अच्छा मैं समझ गया, आपका मतलब शादी की? मम्मी अभी तो वो तय हो रही है, और शादी की नहीं, सिर्फ निकाह को कह रही थी। कौन गुलजार? जी चलो तुम मेरे साथ फौरन। अभी क्या हुआ मम्मी? इससे मेरा क्या कसूर है? कि वो लोग सब मिलके तय कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ तुम मेरे साथ फौरन चलो और होश में रहकर मुझे पूरी बात बताओ, समझे? मम्मी कमाल है आपसे कि मैं पूरी बात कैसे समझाऊंगा? मुझे पूरी बात बताई नहीं गई, सिर्फ शादी को कहा था ना। हाँ, सिर्फ शादी को कहा था, तो मैं क्या कर? अरे आया मम्मी। नहीं शोएब अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत बुरी बात होगी। अब तुम फिक्र ना करो, मैं अपने अमाल और अफाल का खुद जिम्मेदार हूँ। हाँ लेकिन देखिए ना, ये सिर्फ आपका जाती मामला तो नहीं है, इसमें और बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं शोएब अंकल। मसलन कौन? मसलन तानिया। भाई तानिया तो बराह रास्त इन्वॉल्व है, और फिर मैं ये काम तानिया से पूछ कर ही कर रहा हूँ। शोएब अंकल, वो बहुत बेवकूफ लड़की है, उसको कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रही है। और मुझे तो पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप इस बात को मजीद आगे ना बढ़ाएं, वरना ये इसके नताइज बहुत तबाकुल साबित हो सकते हैं। आखिर किसके लिए? सबके लिए शोएब अंकल। अब देखिए ना, बगैर मुख्तार साहब की इजाजत के आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? खैर, मैं छोटे बड़े सारे कदम बगैर इजाजत के उठा सकता हूँ, समझे तुम? और ये तुमसे किसने कहा कि मैं ये काम बगैर मुख्तार साहब को बताए कर दूंगा? मुख्तार साहब को तो मैं बाकायदा इत्तला दूंगा, मदऊ करूंगा। देखिए ना, वो आपने आमिर को पिछले 10 साल से नहीं देखा है, आपको क्या पता वो कैसी जिंदगी गुजार रहा है, किस किस्म का हो गया। आप एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं शोएब अंकल? मुझे आमिर के बारे में सब कुछ मालूम रहता है, उसने कोई शादी वादी नहीं की है, और घूम फिर रहा है, ऐश कर रहा है, तो यही चंद बुराइयां हैं जो कि शादी के बाद खत्म हो जाएंगी। शोएब अंकल, आपको पता है कि तानिया शादी क्यों करी? मैं जानता हूँ, उसकी अपनी कोई वजूहात है जो कि यकीनन मेरी वजूहात से मुख्तलिफ। वो इसलिए शादी कर रही कि उसे पता है कि आमिर कभी वापस नहीं आएगा और ये शादी खत्म हो जाएगी। अच्छा भाई, वाह, बहुत हो, वेरी गुड। रजा, तुम जानते हो कि मुझे वो लड़की इस कदर क्यों अच्छी लगती है? उसमें एक बड़ा अनोखापन है, वो एक बहुत दिलचस्प किताब की तरह है जिसके हर सफे पे कोई चौंका देने वाली बात लिखी हो, और ऐसी किताब को कोई इंसान दरमियान से नहीं छोड़ सकता। ऐसी किताबों की तो बहुत कदर की जाती है शोएब अंकल, उन्हें यूं तबाह तो नहीं किया जाता। ओ फिर वही बात, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जबकि लड़की राजी है, लड़का राजी है, तो फिर तुम्हें क्या शिकायत? लड़के और लड़की की रजामंदी महज मसलहतन है, ये बात आप बखूबी जानते हैं शोएब। 90% शादियां मसलहतन रजामंदी पर की जाती हैं, समझे तुम? इसमें हर्ज क्या है? आमिर क्या बुरा लड़का है? मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तुम देखना वो तानिया को बहुत खुश रखेगा। खुदा करे ऐसे ही। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है शोएब अंकल कि आपको आमिर की भलाई का ज्यादा ख्याल है और तानिया के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे। तानिया के बारे में नहीं सोच रहा? अहमक हो तुम, मुझे लड़की का तो बहुत ज्यादा ख्याल है। इसलिए शहजाद कि अगर मेरी अपनी बेटी होती तो यकीन करो कि वो हूबहू तानिया जैसी होती, इतनी ही खुद सर और ऊट पटांग होती। अच्छा मैं इजाजत चाहूंगा। तानिया, फरमाइए। मैंने सुना है निकाह हो रहा है टेलीफोन पर। आपको ज्यादा इतराज निकाह पर है या टेलीफोन पर? बहुत अक्लमंद हो।
वैसे दौलत हासिल करने का ये अच्छा तरीका अख्तियार किया है तुमने। गलतफहमी हुई है आपको। मुझे दौलत से कतई कोई दिलचस्पी नहीं। अगर दौलत हासिल करने के लिए नहीं तो फिर तुम ये शादी क्यों कर रही हो? ये बात आप नहीं समझे। जाहिर है तुम्हारी जैसी समझ बूझ में कहां से ला सकती हूँ। वैसे ये बात याद रखना तानिया कि आमिर से शादी करके तुम उम्र भर पछताओगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तो वैसे ही इस खानदान में शादी करके पछता चुके हैं। इन भाई साहब ने कम रुलाया है हमारी आपा को। शोएब अंकल की बीवी आपकी आपा थी और क्या, मर गई बेचारी। उम्र भर जलाया है इन्होंने। बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। मगर आप यहाँ क्यों रह रही हैं फिर? मैं तो कभी भी ना रहती, मगर बेचारी आपा की रूह बेचैन होगी इसलिए रह रही हूँ। और फिर ये कौन गुलजार का घर है, इस पर उसका हक बनता है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे शोएब अंकल के पोते का हक है उसी तरह आपके साहबजादे का भी हक है। जाहिर है अगर आपा होती तो क्या ना बनता। मगर तानिया तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम ऐसा करो अपनी नाना के घर फौरन चली जाओ। शोएब अंकल जाने ही नहीं देते, कहते हैं कि निकाह के बाद जा सकती हो। है ये कहते हैं वो? मगर तुम मानती क्यों हो? बुजुर्गों की बात तो मानना पड़ती है ना। मगर उनको हक क्या है तुम पर जबरदस्ती करने का? हो सकता है उन्हें दौलत का लालच हो, क्योंकि मैं भी तो बहुत बड़ी जायदाद की मालिक हूँ। इतनी ही बड़ी जायदाद थी तो यहाँ क्या करने आई हो? मैं पूछती हूँ तानिया, तुमको आमिर के अलावा और कोई नहीं मिला किस्मत फोड़ने को? बहुत मिले थे, फूटी नहीं। तानिया बीवी, आपको खालिद साहब बुला रहे हैं फौरन। कहाँ है? बाग में। अच्छा, ये खालिद क्यों बुला रहे हैं तुमको? जी पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। इन साहबजादे के भी बड़े चक्कर हैं। क्या ये भी मेहरबान है तुम पर? बहुत मेहरबान है, लेकिन आपके साहबजादे से कम। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा बस मुझे वही पसंद है। इतना मेरा ख्याल रखते हैं, हर वक्त मुझे तसल्लियां देते रहते हैं। कुंवर गुलजार तुम्हें तसल्लियां देते रहते हैं? यहाँ कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें भला परेशान होने की क्या जरूरत है। ये कुंवर कह रहे थे, और भी बहुत कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं रहा। मेरे खुदाया, ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। जो मुंह में आता है बकता चला जाता है, कभी इस नर्स से, कभी इससे, कभी उससे। आप यहाँ इतनी देर से खड़ी? दरअसल मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। इस वक्त में फायदे और नुकसान का एहसास ना हो से और किस चीज का एहसास हो सकता है? मैं जानती थी कि आप मुझे डांटने का मौका ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आप मुझसे कतराई कर रही हैं। मैं आपसे डरती नहीं। डरती नहीं तो फैसला करते वक्त मुझे बताया क्यों? आपको बताना क्यों जरूरी था? ये मेरी जिंदगी का फैसला है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाकर अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन होता यूं है कि बात दफा खुद बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तानिया कि आमिर से निकाह का फैसला आपने जिन वजूहात की बिना पर किया है वो सबकी सब नाकाम रहे। दूसरे ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब आपको गुस्सा आया आपने अपनी गुड़िया संभाली और चलती बनी। वहीं भी अब आपकी उम्र गुड्डे गुड़िया खेलने का खेल नहीं है। मैंने कभी गुड़िया की शादी की नहीं। इस किस्म के फजूल खेल मैंने कभी नहीं खेले। तो फिर आप क्यों खेल रहे? आपको क्या एतराज है अगर मैं ये निकाह कर रही हूँ? एतराज? मुझे कोई एतराज नहीं है, आपको जो दीजिए आप करती फिर। मुझे एतराज सिर्फ इस बात पर है कि आप इस निकाह की अहमियत जानती हैं। दूसरी ये कि आप बेवकूफ बनाने की किसको कोशिश कर रही हैं? शोएब अंकल को, मुख्तार साहब को, आमिर को, या खुद अपने आप को? मेरा ख्याल है
आप खुद अपने आप को बेवकूफ बनाएं। आपसे मतलब मैं कुछ करूं? और सबसे ज्यादा नुकसान भी आप खुद ही उठाएं। होने दीजिए नुकसान। आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना सा ख्याल है कि आप मेरी जिम्मेदारी हैं, इसलिए मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। वरना आपको जो तकलीफ होगी उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी और मैं मुर्द इल्जाम ठहराया जाऊंगा। जाहिर है यही बात होगी। मैं भी हैरान थी कि आप मेरी वजह से इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। यकीन कीजिए मैं आपको कभी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। तानिया, ये देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अपने बचाव के लिए और कोई फैसला कर लें, कोई आसान और बेहतर फैसला। फैसला तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए रास्ता होना चाहिए। कोई दूसरा रास्ता है कहाँ? हाँ, प्लीज आप मेरी फिक्र ना कीजिए। मैं मर नहीं जाऊंगी। सारी उम्र मैंने बड़े मुश्किल रास्तों से सफर किया है, मगर आप इस बात को क्या समझेंगे? कोई भी नहीं समझेगा। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने तानिया से बात की, वो मानी? नहीं। यार, तुम्हारी बात नहीं मानी तो और किसकी मानेगी? पता नहीं। शहजाद, तुम ही उसे रोक सकते हो। मैं उसे क्यों रोकूं? तो अपनी मर्जी के मालिक जो उसका जी चाहे वो करती फिर मैं उसे रोकने वाला कौन होता? कमाल कर रहे हो। एक आदमी डूब रहा हो तो उसे डूबने दे। जो आदमी डूब रहा है ना, उसका ये ख्याल है कि वो बहुत अच्छा तैराक है और अगर उसको बचाने की कोशिश की गई तो ये उसकी तौहीन होगी। समझे आप खालिद साहब? यार, इससे तो बेहतर होता कि तुम ही उससे शादी कर लो। मेरा मतलब है वक्ती शादी। ये देखो ना, तुमसे तो जब कहा जाएगा तुम इस किस्से को खत्म कर दोगे, मगर आमिर का क्या भरोसा? जी नहीं, शुक्रिया। मैं इस किस्म की फी सबीलिल्लाह शादियां करने का कायल नहीं। तुम यार हद दर्जे बेहिस इंसान हो। खुदा कसम, अगर शहला इतनी सेंसिटिव ना होती ना और उनका दिल इतना कमजोर ना होता तो मैं खुद निकाह कर लेता। मगर क्या करूं, शहला बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनका बुरा हाल हो जाएगा, मैं उन्हें समझा भी नहीं पाऊंगा। जाहिर। और तुम क्या समझते हो कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ होगा भी नहीं? मैं तुम्हारी तरफ खुद करे तो बेहिस आदमी नहीं। अव्वल तो मैं किसी की मदद करता नहीं, और अगर करने पे आ जाऊं तो जमीन आसमान एक कर देता। जी हाँ, जो कसर उन्होंने छोड़ दी है वो आप पूरी कर दीजिए। तुम देखना तो सही कि मैं करता क्या हूं। शोएब अंकल भी जिंदगी भर याद करेंगे। जरा मैं नर्स तो काबू आ। शहला, तुम कमाल हो गया, तुम खुद ब खुद मेरे घर आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दूर बातें ना करें, मौसम अच्छा हो रहा था, मैंने सोचा घूम कर आ जाए। हाँ, वाकई मौसम इस वक्त किस कदर हसीन हो गया है। आइए थोड़ी दूर तक चलते हैं। फिर इस वक्त तो बहुत जरूरी काम है। वो शहला, वो नर्स है ना, वो बेचारी गिर पड़ी, उसकी दवा लाना है। नर्स? अच्छा फिर मैं चलती हूँ। दवा लाना बहुत जरूरी है, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी शहला। जाहिर है। काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ चल सकता। नहीं, नर्स की दवा लानी बहुत जरूरी है ना? नहीं, ये बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि जरूरी क्या बात है। ओके। शैला, प्लीज मेरी बात तो सुनो। शैला, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैसे आप शाम को हमारे यहाँ आ सकते हैं? गुड, जरूर। मगर मैं शाम को कैसे आ सकूंगा? मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकता। वो शोएब अंकल का जरूरी काम है ना। शैला, बात समझने की कोशिश करो प्लीज। शैला, आज ये भी होना था, सब गड़बड़ हो गया।
फर्ज और मोहब्बत की जंग थी, ये कमबख्त फर्ज जीत गया। तुम यहाँ क्या लेने आए? जी आपके लिए दूध लेकर आए। तो तुम लेकर आए? खैरियत तो है? वो नर्स क्या फौत हो गई? जी चोट लग गई। खैर फौत तो नहीं हुई। अच्छा, कहाँ गई थी बगैर मुझे बताए? जी कहीं भी नहीं, बस यहीं दरवाजे के बाहर पैर फिसल गया था, पाँव में जबरदस्त मोच आ गई। तभी तो कहते हैं कि देखभाल कर चलना चाहिए। वैसे उसे दवा वगैरह मिल गई? जी सब कुछ दे दी। लाई मैं ये किताब आपको पढ़ के सुना दूं। तो खैरियत तो है? आखिर इतनी ताबेदारी क्यों हो रही? कृष्ण जी ये तो मेरा फर्ज है ना। खालिद क्या बात है? पैसे वैसे चाहिए तुम्हें? वो एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कान खोल कर सुन लो, चाहे तुम सारी रात मेरे सराहने एक टांग पर खड़े रहो, समझे? जी नहीं, पैसे वगैरह की बिल्कुल जरूरत नहीं। खुदा के फजलो करम से अच्छी खासी तनख्वाह है मेरी। ये तो और भी हैरत की बात। बहरहाल तुम्हारी मर्जी। बादशाह ने कहा कल देखिए क्या होता है, नक्श मुराद कुर्सी नशीन होगा या नहीं, आरज़ुए दिली पर आएगी या बात खाली जाएगी, क्योंकि आमिल को कामिल है। यहाँ तुम्हें नींद आ रही है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे तुम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हो। जी शुक्रिया, मगर मुझे फिलहाल नींद नहीं आ रही। हाँ तो मैं सुना रहा था, मगर जिस तरह इंसान पर इंसान का जोर चलता है वैसा परिजात बजना पर नहीं चल सकता। हाँ अगर वाकई कोई परी उसके काबू में हो तो मुमकिन है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मत मारिए। बचाओ, 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 बचाओ। क्या बात हुई? तो अहमद कहीं के होश में आओ। आप दाएं मैं हूँ और कौन हो सकता है? वो कहीं कौन गई, कहाँ गई? बेवकूफ, होश में आओ। अम्मा यहाँ कैसे आई? क्या बात है, तुम क्या बक रहे हो? ताई माँ, पानी ताई माँ मुझे मार रही थी। कैसे, कहाँ मार रही थी? बेवकूफ। ईमान से शय बनकर वो खुदा लेकर मेरे पीछे भाग रही थी, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर। भाग रही होंगी बेवकूफ कहीं से। अच्छी खासी नींद लेके खराब करके रखती ना माकू ना हो। ये कैसे यहाँ है? मुझे क्या मालूम, खुदा आपने लगाई होगी। अहमद हो तुम, भला मैं ये तस्वीर लगाऊंगा? ये तो उसी नर्स की हिमाकत होगी। शोएब अंकल, कल अम्मा मेरे ख्वाब में आई थी। मैं कैसा ख्वाब? कौन सा ख्वाब? इसी वजह से तो मैं डर गया था, वरना मैं डरता वरता नहीं हूँ।
शोएब अंकल, पता मैंने क्या देखा? मैंने देखा मैं कब्रिस्तान में गया हूँ और अभी उनके कब्र पे फातिहा पढ़ने के बाद से गया हूँ। हैरत की बात है कि अभी मैं फातिहा पढ़ने भी नहीं पाया था कि एकदम से कब्र खुल गई, ताई अम्मा निकल आई। ओह माय गॉड, मेरा हार्ट फेल होते होते बचा। फिर क्या हुआ? वो निकलते ही चीखने चिल्लाने लग गई, जिस तरह हमेशा चिल्लाती थी ना, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा कि एकदम से कब्र खुल गई, ताई अम्मा निकल आई। ओह माय गॉड, मेरा हार्ट फेल होते होते बचा। फिर क्या हुआ? वो निकलते ही चीखने चिल्लाने लग गई, जिस तरह हमेशा चिल्लाती थी ना, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा चिल्ला रहे होंगी, भाई ख्वाब तो ऐसे ही होते हैं। वो निकल के सीधी तीर की तरह मेरी तरफ आई, कहेंगी आमिर की शादी किससे कर रहा? मैं कहती मुझे क्या मालूम, मैं तो किसी से नहीं कर रहा। वो कहेंगे कि खबरदार, जो आमिर की शादी किसी ने गलत जगह की, मैं उसका खून पी जाऊंगी। अच्छा, वो कह रही थी और लग रहा था कि जैसे वाकई वो खून पी जाएंगी। बेवकूफ। उसके बाद शोएब अंकल, उन्होंने वो कब्र खोदने वाली कुदाल उठा ली और लेकर मेरे पीछे भागी। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया जी। अच्छा होगा, आप छोड़ो ये सब। वो आपको भी बहुत कुछ कह रही थी, मैं वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता जी। क्या जी, भाई वो तो आदत हम कह रही होंगी। खैर तुम ये बातें छोड़ो, जाओ अपने कमरे में। वो कह रही थी कि अगर किसी ने आमिर की शादी की तो एक एक की खैर नहीं है? जी। भाई कमाल है, भाई शादी ब्याह से अब उनका क्या ताल्लुक है? लेकिन खवातीन जहाँ कहीं भी होती है, इस मामले में उनकी दिलचस्पी जरूर रहती है। और ताई अम्मा की दिलचस्पी तो बहुत ही ज्यादा होती है। अब देख लीजिएगा, अब वो आपके ख्वाब में आएंगी। अब बकवास मत करो, अब सारी रात को ख्वाबों में ही नजर आती रहेंगी। हैं? उनसे कुछ बईद नहीं है, वो वैसे भी आ सकती हैं। देखिए ना शोएब अंकल, जब निकल ही आई हैं तो आने जाने में क्या है? मैं कह रहा हूँ छोड़ो ये सब बातें, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आदमी किस किस्म की खुराफात नजर आती रहती है तुम्हें। खुराफात नहीं ताई अम्मा, मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। तुम लोगों को सिवाय परेशान करने को और कुछ नहीं करना आता। अच्छी खासी नींद चाहिए, खराब करके रखती। जाओ, मुझे नींद आ रही है, निकलो यहाँ से, निकलो। मगर शोएब अंकल, आप आमिर से कह दीजिएगा वो जिंदगी में कभी शादी ना करे। कह रहा हूँ गेट आउट। जी बिल्कुल। गधा। हेलो, कौन? अमेरिका शिकागो की कॉल है, मिस तानिया के नाम। मिस तानिया मौजूद हैं? जी हाँ, मैं तानिया बोल रही हूँ, मगर 1 मिनट होल्ड करें। हेलो, मिस तानिया एहसान बोल रही हैं शोएब साहब के घर से। जी हाँ, मैं तानिया एहसान बोल रही हूँ, मगर आप कौन हैं? मैं आमिर हूँ, शिकागो से बात कर रहा हूँ। दादा जान ने मुझे आपके बारे में बताया था। ओह, आप आमिर साहब हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या किस्सा है? आप कौन हैं और दादा जान मेरा निकाह आपसे क्यों करवा रहे हैं? या आपने अपने दादा जान से नहीं पूछा? भाई वो नहीं बताएंगे ना, मगर आप क्यों कर रही हैं ये निकाह? आप क्यों कर रही हैं? आप मेरी बात सुने, आपने मुझे बिल्कुल नहीं देखा, नहीं आप मुझे जानती हैं। आपको क्या मालूम कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ? मुझे नहीं मालूम। बस फिर आप इनकार कर दीजिए। ये बात मैं बहुत सिंसियरली कह रहा हूँ आपसे। क्यों आखिर? भाई मैं शादी मादी बिल्कुल नहीं करना चाहता, न करूँगा। न मेरा वापस आने का इरादा है, नहीं मैं आपको यहाँ बुलवा सकता हूँ।
आप इनकार कर दीजिए फौरन, अभी। आप क्यों नहीं इनकार कर देते? भाई मैं नहीं कर सकता ना, बहुत मजबूर हूँ। क्यों? वो मेरा अलाउंस बंद कर देंगे और रुपए पैसे के बगैर मैं यहाँ मर जाऊंगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत रहती है। आप इनकार कर दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है मुझे फर्क पड़े। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप दादा जान से डरे भी मत, बिल्कुल साफ साफ कह दें, बी ब्रेव। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप वाकई यहाँ नहीं आएंगे और ना मुझे बुलाएंगे? एग्जैक्टली यही बात है। फिर जाहिर है इस निकाह की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं होगी सिवाय पैसे के, और आपका जब दिल चाहेगा आप इसे तोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मतलब? आप इनकार कर रही हैं? इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। वैसे शादी वादी मुझे भी नहीं करना है बिल्कुल। अच्छा खुदा हाफिज। हाँ आओ आओ शहजाद आओ, मुझे तुमसे कई काम है। मैं कल तानिया और आमिर का निकाह करवा रहा हूँ फोन पर। तो कतई नामुनासिब है। अब बहुत मुनासिब है, बीच में मत बोलो। जी मुझे तुमसे 2-4 काम है। आखिर ये सारा मामला अरेंज करवाना है और मैं चंद लोगों को मदऊ भी करना चाहता हूँ। हम सॉरी शोएब अंकल, मुझे 2 दिन के लिए लाहौर जाना है। हाई कोर्ट में अपील है मेरे मुकदमे की। तो तुम आज जा रहे हो? अजय हाँ, 1 घंटे के बाद। क्या बिल्कुल हिमाकत की बात कर रहे हो? तुम तो उस लड़की के गार्जियन हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी बिल्कुल नामुनासिब है, समझे? मुझे अफसोस है शोएब अंकल, मैं नहीं रुक सकता। वो और फिर ये कि मुख्तार साहब की जिंदगी में मैं उसका गार्जियन नहीं बन सकता। खैर खैर, मैं मुख्तार साहब को भी बुला रहा हूँ। जा तो ये रहा था कि तुम उन्हें बुलाते, तुम्हारे बुलाने से शायद वो जरूर आ जाते। मैं कतई नहीं रुक सकता शोएब अंकल, इससे मेरे मुकदमे पर बुरा असर पड़ेगा। शहजाद मैं जानता हूं कि तुम्हें ये बात पसंद नहीं है और तुम इसी वजह से जा रहे हो, यही बात है ना? रुझान, हाँ ठीक समझे। दरअसल मुझे ये आइडिया सिरे से नापसंद है, इसलिए मैं इस निकाह के हक में नहीं हूं जो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मसलहतों की बिना पर हो रहा है। मैं आपको मना नहीं कर सकता, ना ही दूसरे फर्द को रोक सकता हूं। अलबत्ता मुझे अफसोस जरूर होगा जब इसका अंजाम अच्छा नहीं निकलेगा। क्या मतलब तुम्हारा इसका अंजाम अच्छा नहीं निकलेगा? शोएब अंकल, जिस रिश्ते की बुनियाद ही मुनाफिकत और झूठ पर हो, उसका क्या अंजाम होगा आप खूब ही जानते हैं। यानी हम सब झूठ बोल रहे हैं? जी नहीं, कम से कम वो लोग तो झूठ बोल रहे हैं जिनका बराह रास्त इस रिश्ते से ताल्लुक है और उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ ये तुम्हारी गलत फहमी है। हो सकता है कि वो दोनों अभी पुरखुलूस ना हो इस मामले में, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन बाद में वो दोनों खुश रहेंगे। ये बात मैं तुम्हें लिख के भी दे सकता हूँ। ये बात आप उनको लिख कर दे दें, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। जा रहे हैं? जी हाँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, आपके नाना जान के पास नहीं जाना। मैं इसलिए नहीं पूछ रही। जाहिर है आपको किसी की फिक्र क्या होगी। कल के बाद आप खुद मुख्तार हो जाएंगे, जो आपका जी चाहेगा आप करेंगे। यही चाहती हैं ना? मुबारक हो। आप मुझ पर तंज ना करें। तो फिर आप मुझसे ये क्यों पूछेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? देखिए, अगर मैं ये गलत कर रही हूँ तो वो भी तो गलत था जो नाना जान मेरे लिए कर रहे थे। गलतियां तो सब बराबर होती हैं। तानिया, मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि उस रोज मैंने आपकी बात क्यों मान ली, आपको वहां छोड़कर क्यों ना चला है। वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता जो अब आप अपने लिए कर रही हैं। आप इतने खफा क्यों हैं? मैं कोई जुर्म तो नहीं कर रही हूँ। जुर्म? जुर्म नहीं तो और क्या है? आप सबको धोखा दे रही हैं, इसे जुर्म नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? मैंने आपको तो धोखा नहीं दिया। हाँ, आपने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन मुझे धोखा जरूर हुआ। मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी करूँ आप हमेशा खफा ही रहते हैं। पता नहीं क्या बात है।
مجھے آپ سے خفا ہونے کا کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پریشان نہیں ہوں؟ ایک بات بتائیں تانی، فرض کیجئے کہ آپ کے اعظم انکل جن کے لیے آپ گھر سے چلی تھی زندہ ہوتے اور وہ آپ سے کہتے کہ آپ غلطی کر رہی ہیں، تو آپ مان لیتی؟ اعظم انکل اس طرح تو نہیں کہتے جس طرح آپ خفا ہو کر کہتے ہیں. پلیز تانیہ، خدا کے لیے آپ انہیں منع کر دیجیے. دیکھیے آپ انہیں آخری لمحے تک منع کر سکتی ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتی کیا آپ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں؟ اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں. کرنے دیجیے، آپ کو کیا پرواہ ہے؟ مجھے پرواہ ہے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ سے نہیں سمجھیں گے جو آپ کو دی جائے کیجیے. جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دونوں کی رضامندی سے یہ بات طے ہوئی ہے. کیسی رضامندی؟ کہاں کی رضامندی؟ دیکھیے میری نوازی کرنے کا آپ بغیر میری اجازت کے نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ میں قیامت برپا کر دوں گا. ضرور کیجیے گا.